Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Tech stocks earnings helped virtual digital currencies to stage a recovery this week after struggling in the initial days of uncertainty caused by US regulator taking tough stance. Further, banking jitters rekindled Bitcoin prices that were languishing near $27,000 mark amid a mass liquidation of short and long positions and separate unfounded rumors of Bitcoin sales by the US government and of crypto from failed exchange Mt. Gox before rebounding. Recently, Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, was trading at about $29,500, up roughly 2.2% over the past 24 hours. BTC topped $30,000 at one point, near its earlier week highs, but still well off its April peak close to $31,000. Ether was recently trading above $1,910, up about 0.8%. Bitcoin and other cryptos have been stubbornly resistant to industry mishaps and wider macroeconomic uncertainty. Following the protocol's successful migration to the Solana blockchain last week, Helium's newly issued IOT token has increased by over 370% in the last 24 hours. IOT is the protocol token of Helium's Internet of Things network, and it is mined from Helium's hotspots, which are the hardware infrastructure that powers the IoT network. The tokens will always be backed by Helium Network's HNT token and can be converted to HNT at any time, with the redemption rate determined algorithmically by the Treasury swap contract. According to Solana's Block Explorer, there are approximately 6 billion tokens in circulation, with a maximum token supply of 200 billion. Camino Finance, Solana-based DeFi protocol, announced the opening of 2 Helium vaults where investors can stake their IoT and HNT tokens for a yield. तो लास्ट वीक ही हीलियम ने जो उनका IoT टोकन है उसे माइग्रेट किया था सोलाना नेटवर्क पर, और उसके बाद जो ये IoT टोकन है वो HNT से बैक भी है, और कभी भी जो यूजर्स हैं वो इस टोकन को HNT में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो तब से देखा गया कि जैसे ही सोलाना नेटवर्क पर ये माइग्रेट हुआ तो $6 बिलियन जो है वो सर्कुलेशन में आए ये टोकन्स, और जो IoT ये टोकन है ये 370% सर्च भी किया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, विच इज एक्चुअली गुड फॉर हीलियम। एक्चुअली हीलियम के फाउंडर्स ने ये डिसीजन लिया कि उन्हें लगा कि अगर वो सोलाना पर जाएंगे तो इससे इट विल अनलॉक ह्यूज पोटेंशियल फॉर अ लॉट ऑफ न्यू यूज केसेस, और उन्होंने ये भी उन्हें लगा कि उसके बाद जो उनके मास केसेस ऑफ NFTs हैं वो भी होंगे, और हुआ भी। ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो है NFTs उसमें मिंट की गई, और हर जो NFT मिंट उस पर की जाती है वो रिप्रेजेंट की जाती है एक हॉटस्पॉट नोड से। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट से ही माइन किए जाते हैं ये IoT टोकन्स, और जैसे कि आपने कहा हर IoT टोकन जो है वो HNT से बैक्ड है, एंड आप कभी भी चाहो उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो एल्गोरिथमिकली कन्वर्ट हो जाएंगे जो उनके यूजिंग द ट्रेजरी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत अच्छा, मैं कहूँगी फिलहाल ये डिसीजन था। लेट्स सी आगे ये कहाँ जाता है, कितना इसको सक्सेस मिलता है। Moving on, Floki has increased by more than 35% in the last 24 hours. The big rally occurred after the world's largest crypto exchange listed the native token of the Floki ecosystem on its American arm. The initial rise propelled the token to a 6-week high of $0.000047. Floki is currently one among the top 100 cryptocurrencies on CoinMarketCap. The Floki ecosystem currently consists of a play-to-earn game, Floki-Fi, crypto education, Floki prepaid card, as well as NFT collections and marketplaces, according to the statement. The post, Floki Inu jumps 50% following listing on Binance US, appeared first on Coin Edition. तो यहाँ जो फ्लोकी इनू जो है टोकन को बहुत अच्छा जंप मिला 35% का, जैसे ही उसे बाइनेंस पे लिस्ट किया गया, और बाइनेंस पे लिस्ट करते ही उसमें हमने देखा एक 6 वीक का हाई, जो 6 वीक में हमने जो हाई नहीं देखा था वो देखने को मिला, और साथ ही अब ये टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में से एक है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, विच इज़ अ बिग थिंग। जी बिल्कुल, आई थिंक फ्लोकी के लिए बहुत ही अच्छा रहा है ये मूव जो Binance.us ने उसे लिस्ट किया है अपनी US आर्म पे। तो $0.000047 जो हमने देखा कि 6 वीक हाई हो गया, और उसी टाइम पे 50% सर्च भी फ्लोकी किया, और पहले ही फ्लोकी ये ट्विटर पे ये न्यूज़ जो है वो शेयर की। आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर फ्लोकी। राइट।
As the losses mount for Tiger Global Management, the once voracious tech investor is now getting bruised by bets on blue-chip crypto businesses. Tiger recently informed investors that its $12.7 billion venture fund, which it launched late in 2021, had produced a paper loss of 20% net of management fees as of December last year. Half a dozen major crypto startups contributed to the loss. An investment in Sam Bankman-Fried's FTX, which collapsed in November, was entirely wiped out, while Tiger also marked down investments in NFT marketplace OpenSea, Bored Ape Yacht Club, creator Yuga Labs, payments firm MoonPay, decentralized wireless network startup Helium, and Sam Altman's eyeball scanning protocol WorldCoin, according to the report. Tiger had invested $126.8 million in OpenSea, an investment now worth just $30.2 million, according to the information. That comes with wider reporting that shares in priced crypto companies are available on secondary market platforms at steep discounts. In total, Tiger has backed around 250 startups through the venture fund, of which more than 170 were worth less in December last year than when the first firm invested, suggesting crypto price tags are falling at least somewhat in line with the wider tech startup space. तो यहाँ हमने देखा कि टाइगर ग्लोबल जो एक टेक जायंट है वो या टेक इन्वेस्टर उसे कह लीजिए, तो बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर से ही हम देख रहे हैं कि लॉसेस फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसने जो अपनी होल्डिंग्स है जो टॉप NFT मार्केट प्लेसेस है जैसे बोर्ड एप याट क्लब, मूनपे, तो इन सब पे जो अपनी होल्डिंग्स है उसे भी कम कर दिया है। और काफ़ी जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स थे इसकी जो लिस्ट में, उन्हें भी उन पर भी एक नज़र रखी जा रही है। और सो बेसिकली टाइगर ग्लोबल ने 250 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था, उनको इन्वेस्टमेंट्स दी थी, जिसमें से 170 की जो वैल्यू अभी हम देख रहे हैं कम हो गई है। 6 बड़े बड़े स्टार्टअप्स ने जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस जो है उन्होंने दर्ज किए, जिसकी वजह से जो उनका इन्वेस्टमेंट फंड था $12.7 बिलियन का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट फंड ये बड़ा सा 2021 में शुरू किया था, उसमें उनको 20% का लॉस हुआ। तो आई थिंक इट्स अ ट्रिकलिंग इफेक्ट, क्योंकि स्टार्टअप्स जिन पे इन्वेस्ट किया उन्होंने लॉसेस दर्ज किए, तो उनको ओवरऑल लॉसेस हुए, तो कंपनी की वैल्यूएशन कम हो गई। तो जहाँ उन्होंने FTX जब कोलैप्स हुआ उससे भी उनको नुकसान हुआ। तो यहाँ पर तभी जो OpenSea, युगा लैब्स, फिर जैसे मून पे हम बात करें, हीलियम, इन सब में भी इन्होंने जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। और अब वो जो अगर हम OpenSea की बात करें उसमें उन्होंने 126.8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, उसकी जो वर्थ है अब वो 30.2 मिलियन ही रह गई है। तो आई थिंक हाँ अभी थोड़ा सा तो सिचुएशन जो मार्केट है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर टेक स्टॉक्स बढ़ते हैं, हम एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखते हैं मार्केट में, तो आई थिंक हो सकता है टाइगर ग्लोबल जो है कुछ हद तक अपने इन लॉसेस को रिकवर कर पाए। बिल्कुल। मूविंग On Sunday, Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized the importance of global consensus in regulating crypto assets. She stated at a series of events in Bengaluru that any kind of regulation on crypto assets would require the consent of every nation, otherwise it would be ineffective. Sitharaman said that as part of its G20 presidency, India has prioritized crypto asset regulation for this year. The IMF published a paper on cryptocurrency and its impact on macroeconomic stability. The Financial Stability Board, which was set up by G20, has agreed to give a report that will also focus on financial stability. Sitharaman said. The finance minister said that reports of both FSB and IMF will be discussed in July when finance ministers and central bank governors will meet under the G20 umbrella. तो यहाँ आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है अब क्रिप्टो को लेकर, और अच्छी बात है कि अब जिस बार जो G20 की मीटिंग होगी उसका जो फोकस है या प्रायोरिटी है वो क्रिप्टो के रेगुलेशन को दिए गए हैं। और हमेशा से निर्मला सीतारमन ने ये कहा ही है कि जब तक कि सारे नेशन किसी एक स्टैंडर्ड रूल पे कंसेंट नहीं देते तो हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फिर वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है तैयार की है IMF ने, और उन्होंने देखा कि हाँ, और दोनों ही रिपोर्ट्स को जो है जुलाई में देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि देखते इस पर फिर क्या आगे नतीजा निकलता है। जी बिल्कुल। तो बैंगलोर में ये इवेंट हुआ और वहीं पे ऐसा कहा गया उनके द्वारा कि एक ग्लोबल रेगुलेशंस एक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जो कि अब G20 है उस पर सबकी नज़रें रहने वाली है, जैसा कि अब जुलाई में जो जितने भी गवर्नर्स हैं या जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं सभी मिलने वाले हैं, एक अम्ब्रेला के अंडर सब आने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि अब क्या रेगुलेशंस आते हैं। बिल्कुल। मूविंग ऑन, the Enforcement Directorate recently conducted searches against the offices of an app which dealt into cryptocurrencies and seized 91.6 crore lying in various payment gateways and accounts.
The search was carried out on April 21st at 3 payment gateways premises in respect of the accounts held by the entities controlled by Bhupesh Arora and his associates in connection with an investigation relating to the misuse of app-based token named HPZ and other similar applications by several entities. The ED lodged the case on the basis of an FIR registered by Cybercrime Police Station Kohima, Nagaland under various sections of IPC against HPZ token and others. ED investigation revealed that Lilian Technocab Private Limited and Shigu Technology Private Limited were involved in the operating and collecting money from investors in the name of HPZ token. तो नागालैंड में एक ये जो FIR है वो रजिस्टर हुई HPZ के खिलाफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे है कि ये क्रिप्टो से डील कर रहे थे ये ऐप, और जो ये टोकन है इसके नाम पे जो ये 2 कंपनीज थी वो पैसे लेती थी, और फिर जब पता चला तो 91.6 करोड़ जो है, जो कि बहुत ज़्यादा राशि है, ये ED ने जो है सीज़ किया है। ऐसा ही कुछ लास्ट ईयर भी हुआ था विशाखा, जब कुछ 12,000 करोड़ का जो इंस्टेंट लोन ऐप का केस था, तब भी ऐसा ही हुआ था कि किसी छोटी सी जगह से बहुत सारी FIRs आई थी, और वो भी FIRs यही कह रही थी कि ये इंस्टेंट लोन ऐप से हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उस वजह से लोग सुसाइड कर रहे थे। तब भी ED ने कार्रवाई की थी, और तब बहुत सारी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भी जो है उन्होंने अपना शिकंजा कसा था, उनकी ऑफिस पर रेड की थी और बहुत सारे पैसे बरामद किए थे। आई थिंक उसके बाद ही बहुत सारी जो एक्सचेंजेस हैं वो इंडिया से मूव आउट भी हो गई थी। तो ये ED का ये है एक एम कि जो भी क्रिप्टो को लेकर जो भी गलत काम हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ट्रैक करना, और वो अभी ED पूरी तरह से इस काम पर लगी हुई है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का भी इसी तरफ पूरा का पूरा रुझान है कि किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी क्रिप्टो को लेकर नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो वो बंद हो जाए। तो ऐसे में रेगुलेशंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। According to PwC India, nearly 70% of business executives in India plan to integrate the metaverse into their organizational activities, while 63% of companies that are actively engaged with the metaverse say they will fully embed the metaverse in their organizational activities within a year. According to the report, the metaverse is a digital environment with a virtual world that mimics reality by utilizing emerging technologies such as AI, low-no-code platforms, blockchain, cybernetics, 5G, edge computing, digital identity models, community and power platforms, AR and VR. More than 60% of business leaders polled by PwC India stated that they have a detailed or good understanding of the metaverse, with 48% having a good understanding and 13% having a detailed understanding already beginning to leverage its benefit. TMT accounts for 22% of the companies surveyed, FS for 19%, pharma and healthcare for 16%, retail and consumer for 15%, industrial products for 12%, government for 9%, and automotive and edtech for 7%. 79% of those working in the TMT sector say they have a thorough or good understanding of the domain. तो ये मेटावर्स के लिए आई थिंक बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया में जो है वो मेटावर्स को बहुत अच्छे से और तेज़ी से अडॉप्ट करना चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एंड हम जैसे देख भी रहे सर्वे कह रहा है कि उन्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है मेटावर्स की, और हम खुद देखते हैं आप विशाखा इतनी सारी नई नई कंपनीज से बात करती हैं, सारे फाउंडर्स से बात करती हैं, वो वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं मेटावर्स को लेकर। जी, तो जब मेटावर्स आया 2021 में, जब फेसबुक ने रीब्रांड किया मेटा में, तो सभी एक हाइप बन गई एक मेटावर्स की। तो लेकिन जो अभी जो की प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में वो कहते हैं कि मेटावर्स एक हाइप नहीं है, एक रियलिटी है, क्योंकि बिल्कुल ये सबके लिए एक बहुत ही सहूलियत लेकर आने वाली है आने वाले टाइम में, और सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये टेक्नोलॉजी। हम गेमिंग सेक्टर ले लें, हम हेल्थ केयर सेक्टर ले लें, हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो यशोदा हॉस्पिटल जो है, तो वहाँ पे, या अगर हम बात करें अपोलो ग्रुप की, तो ये सभी ई चिलीज़ के साथ जैसे इन्होंने पार्टनरशिप किया, तो हेल्थ केयर या ऑटोमोबाइल ले लें हम, या हम इंडियन ब्रांड्स ले लें, बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री, जैक एंड जोन्स ले लें। तो जैक एंड जोन्स में तो अभी मेटावर्स कलेक्शन भी डिस्प्ले होने वाली है सभी स्टोर्स में। तो इतना कुछ मेटावर्स ने बदल भी दिया है, और सभी, क्योंकि कोविड के बाद से सब कुछ डिजिटल हो गया, और सभी ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा उन्हें मिल जाए सो दैट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी कंज्यूमर्स को वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएँ।
तो अब यहाँ पे जो PwC इंडिया की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही पॉजिटिव साबित हुई है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं, बीट हेल्थ केयर और एनी इंडस्ट्री F&B हो, तो सभी चाहते हैं अडॉप्ट करना। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 13% जो हैं वो कहते हैं कि उन्हें अच्छी खासी नॉलेज है मेटावर्स के बारे में, और इससे रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को अभी यूज़ भी कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स भी हम देख रहे हैं इंडिया में जो है। हालांकि अब AI की तरफ सबका फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन AI भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेटावर्स में। और इंडिया में जो अभी बजट 2023 की अनाउंसमेंट हुई उसमें भी AI इंस्टीट्यूशंस जो है वो 3 AI इंस्टीट्यूशंस खोले जाने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव साइन, और बहुत अच्छे से आई थिंक मास अडॉप्शन हम बहुत जल्द देख पाएंगे, जैसा कि जो की प्लेयर्स हैं उनका कहना है। क्योंकि आई थिंक टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और अपने घर की कन्वीनियंस या फिर अपने ऑफिस की कन्वीनियंस से आप इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। Moving on, Solana users will soon be able to interact with the network through an open source plugin enabled on OpenAI's artificial intelligence chatbot ChatGPT. The plugin will allow ChatGPT to check wallet balances, transfer Solana native tokens, and purchase non-fungible tokens when OpenAI makes plugins available, according to an April 25 tweet by Solana Labs, the development firm behind the Solana blockchain. Solana Labs is also encouraging developers to test using the open source code to retrieve on-chain data that they may be interested in. The screenshot shared by Solana Labs shows that ChatGPT can retrieve a list of NFTs owned by a particular Solana address, which shares an attached metadata link to the NFT, presumably sourced from a Solana Labs block explorer. Solana Labs did not mention whether the plugin would be launched when OpenAI makes the plugin feature available to all. तो अभी सभी लोग चैट जीपीटी कर रहे हैं, इट्स ट्रेंडिंग। और अभी सोलाना ने भी, सोलाना लैब्स जो है उनका जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है उससे ये अनाउंस कर दिया कि वो चैट जीपीटी प्लगइन लेकर आ रहे हैं। तो इससे आई थिंक यूज़र्स को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने वॉलेट में उनका कितना ये देख पाएंगे, उनका अकाउंट का बैलेंस क्या है, वॉलेट का बैलेंस क्या है, जो टोकन्स है उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे और NFTs भी खरीद पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव एंड चैट जीपीटी इज़ ट्रेंडिंग। आई थिंक इट इज़ द फ्यूचर, बिल्कुल हम देख रहे हैं, बिल्कुल। तो मूविंग ऑन, the creators of the popular battle royale shooter PUBG Battlegrounds Crofton haven't forgotten about the metaverse. Its envisioned Web3 metaverse game platform, tentatively dubbed Migalu, is still under development and is now expected to go live this year. According to a release this week, Crofton and the South Korean augmented reality developer NeoZ established a joint venture company with headquarters in North America and invested $36.6 million in Migalu's development. According to the agreement, Crofton will hold 85% of the company's stocks and NeoZ would hold the remaining 15%. वैसे भी देखा जाए तो मेटावर्स की बात करें, NFTs की बात करें, जो गेमिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन ले रहा है और सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है। और इंडिया भी 3rd नंबर पे आता है जब गेमिंग की बात होती है, चाहे वो Web3 की गेमिंग की बात हो। एंड PUBG का जितना क्रेज़ था, जितनी पॉपुलैरिटी थी, जितना वाइड स्प्रेड थी, वो वी ऑल नो दैट। सो अब आई थिंक जब उसी का एक वर्जन मेटावर्स पे आएगा तो उसको भी सेम काइंड ऑफ सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो डेवलपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और बाहर के जो कंट्रीज़ है वो भी चाहते हैं कि इंडिया से ही डेवलपर उनके पास हो, और काफ़ी ज़्यादा टेक सेवी हैं सभी लोग। तो अब जो ये PUBG, आई एम श्योर, क्या आप PUBG खेलती थी? बिल्कुल नहीं। ओके, तो अब जो PUBG है आई थिंक ये आप ज़रूर खेलना चाहेंगे, क्योंकि NFT मेटावर्स गेम जो मेगालू एक नया प्लेटफॉर्म है, तो PUBG ये लेकर आने वाला है। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे PUBG तो मैं खेलूंगी, मैं तो ज़रूर खेलूंगी। हम NFT और मेटावर्स ही सेक्टर देखते हैं, तो आई थिंक वी शुड प्ले इट, एंड आई एम श्योर यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि PUBG के सभी फैन थे जब PUBG थी, उसके बाद फिर BGMI। तो क्राफ्टन का ये जो मूव है वो नेवजी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, और यहाँ पे $36.6 बिलियन वो इन्वेस्ट भी कर चुका है। तो अब ये जो पार्टनरशिप है इसमें 85% स्टेक जो है वो क्राफ्टन का होने वाला है, और 15% स्टेक नेवजी का, जो कि एक साउथ कोरियन ऑगमेंटेड रियलिटी कंपनी है। तो अभी ये अनाउंसमेंट हुई है, एंड आई थिंक ये तो जल्द ही जल्द इस ईयर में लाइव भी हो जाएगी ये। मूविंग ऑन, देयर आर प्लेयर्स, लेजेंड्स एंड द कोट.
Radio is pleased to announce a special partnership with Sachin Tendulkar to commemorate the Master Blaster's 50th birthday. Radio is excited to release a collection of 10 limited edition digital cards in honor of SRT's illustrious career and invaluable legacy. The rarity of these digital cards distinguishes them. With only 10 available for purchase right now, they are ultra-rare collectibles that cannot be found anywhere else. Fans who own these exclusive cards will also can virtually interact with Sachin Tendulkar himself and create unforgettable moments with the cricket legend. Each card comes with an authenticity certificate and is verified on the blockchain to ensure its uniqueness and value. The collection is now exclusively available for purchase on Rareo's website. The release of the exclusive digital cards is a grand celebration of Sachin Tendulkar's 50th birthday. It gives fans a once-in-a-lifetime chance to own a piece of cricket history while also paying tribute to the legend himself. तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है ये क्रिकेट फैंस के लिए, स्पेशली जो कि सचिन तेंदुलकर यानी कि मास्टर ब्लास्टर के फैंस हैं, क्योंकि उनका अभी 50th बर्थडे रिसेंटली हुआ और उस पर जो है रेडियो ने, जो कि NFT मार्केट प्लेस है, उसने जो ये डिजिटल कलेक्टिबल्स लॉन्च किया, डिजिटल कार्ड्स लॉन्च किए हैं और ये लिमिटेड एडिशन है। तो इसमें से 10 अभी परचेज़ के लिए बाहर है और अगर हम इसे ख़रीद लेते हैं तो वर्चुअली हम सचिन तेंदुलकर से बात कर पाएंगे, तो एक बिल्कुल अच्छी मेमोरी हम क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये सभी क्रिकेट लवर्स के लिए। आई थिंक हर सचिन फैन का तो ये सपना ही रहा होगा कि कभी एक्चुअली उन्हें सामने से देख पाए या हाथ मिला पाए। चलिए हाथ तो नहीं मिला पाएंगे, लेकिन उनकी ये जो ड्रीम है, क्योंकि सिर्फ 10 ही कार्ड्स हैं और ऑल 10 ओनर्स जो कि ये कार्ड जो ओन करेंगे उन सबको मौका मिलेगा कि वर्चुअली वो सचिन से बात कर पाएंगे। इट्स आई थिंक अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम एंड ऑब्वियसली उनके बर्थडे पर ये किया गया था स्पेशली। एंड कार्ड्स हैं तो उनके साथ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी मिल रहा है और ब्लॉकचेन पर वेरीफाइड भी होंगे। तो ऐसा भी नहीं कि किसी को लगेगा कि क्या एक्चुअली में मिलेगा मौका मिलने का या नहीं, कहीं ये तो नहीं सिर्फ कार्ड हम ले लेंगे, कहीं ना कहीं हम ठगे तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा आश्वासन उसके साथ है। एंड हमने पहले देखा था धोनी की भी एक NFT बनी थी, तो धीरे धीरे जो स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत उनका रुझान हम देख रहे हैं NFT की तरफ। सो आई थिंक दैट्स a great move. Bilkul. So that's all in this episode of Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great weekend.